আজকের বিষয় হচ্ছে কি জানো? ডেইলি রুটিন অফ ফর সাকসেস। তো এখানে একটা লেখা পড়ছিলাম, তো সেটা হচ্ছে যে এভরিথিং ইন ইউর লাইফ, whatever life you are living, just because of you, whatever decision every day you are taking or you have taken in your past life, that's why you are living what life you living. আপনি আপনার জীবনটা, আজকের দিনটা, সেই জীবনটাই আপনি ইয়ে করছেন প্রতিদিন। এর আগে প্রতিটা দিন আপনি যে ডিসিশনগুলো নিয়েছেন, যে অ্যাক্টিভিটিগুলো করেছেন, তার বেসিসেই আপনি আপনার লাইফটা এনজয় করছেন বা লাইফটা কাটাচ্ছেন। এতদিন যতগুলো আপনি ডিসিশন নিয়েছিলেন, যদি এরপরে আমাদের লাইফটা বদলাতে হয়, বেটার করতে হয়, তাহলে কি করতে হবে? কি করতে হবে? ডিসিশন তো চেঞ্জ করেছি বহু বছর আগে। নিজেকে তো বললো ইয়ে চেঞ্জ করা যাবে না, চরণজিৎ বললো চেঞ্জ করা যাবে না। ডেইলি রুটিন। কোন এক স্পিকারের কাছে শুনেছিলাম যে আমাদের এই শরীরটাকে যদি ঠিক করতে হয় তাহলে কি করতে হবে? শরীর ঠিক করতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে। এই শরীরের যদি প্রত্যেকটা সেলকে আমি ঠিক করে দিই, সুস্থ করে দিই, শরীরটা সুস্থ হবে? হ্যাঁ, হবে কি হবে না? শরীরের প্রত্যেকটা সেল, প্রত্যেকটা অর্গানের প্রত্যেকটা সেলকে যদি আমি ঠিকঠাক করে দিই, ঠিক করে দিই, তাহলে আমার শরীরটা ঠিকঠাক পারফর্ম করবে। এক্স্যাক্টলি হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট টু বি, আর আমাদের যাই গোল হোক সেটা আমরা অ্যাচিভ করবো। মানে আমরা ইয়ারলি গোল ঠিক করি, 5 বছরের গোল ঠিক করি, 5 ইয়ার্সের গোল ঠিক করি, 5 ইয়ার্সের প্ল্যানিং করি, 1 ইয়ারের প্ল্যানিং করি। হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ডেইলি রুটিন? প্রতিদিনের প্ল্যানিং করি কি আমরা? আমাদের পুরো বডি ঠিক করতে চাইছি, বাট আমাদের অর্গানগুলো কি করে ঠিক করতে হবে সেটাই করি না। লিভার কি করে থাকতে হবে, কিডনি কিভাবে ঠিক থাকবে, দাঁত কিভাবে ঠিক থাকবে, চোখ কিভাবে ঠিক থাকবে, সেটা করি না। যদি সেটা করি তাহলে পুরো বডিটা ঠিক থাকবে। এক্স্যাক্টলি এখানে আমরা প্রত্যেকেই যেটা করি সেটা হচ্ছে বছরের প্ল্যানিং করি, কিন্তু প্রতিদিনের প্ল্যানিং আমিও করতাম না, প্রতিদিনের রুটিন আমিও ঠিক করতাম না। অনেকেই আমরা করতাম না, বাট রিসেন্ট টাইমে আমরা অনেকেই করছি প্রতিদিনের রুটিন প্ল্যানিং। কি হওয়া উচিত এক্স্যাক্টলি আপনার জন্য একদম পারফেক্টলি কি হবে সেটা হয়তো আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি একটা ইয়ে দিতে পারি, কাঠামো দিতে পারি, একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিতে পারি, যেটার উপর বেস করে আপনি ডিজাইন করতে পারেন। ঠিক? তাহলে আমরা তো আমাদের জীবন বদলাতে এসেছি। যদি জীবন বদলাতে হয় তাহলে কি হবে? যারা অ্যাচিভার্স তাদের সঙ্গে আমাদের ডিফারেন্স কি? যারা অ্যাচিভার্স তাদের সঙ্গে আমাদের ডিফারেন্স কি? আরে আমি এক্সাইটেড হয়ে গেছি। তো যারা অ্যাচিভার্স তাদের সঙ্গে আমাদের ডিফারেন্স কি? চরণজিৎ জি বললো না এখানে, नाक कान चोक सब एक ही है ना। शिष्य और गुरु का डिफरेंस कहाँ पे है? चेतन में, ज्ञान में, उनका चेतन में। तो यहाँ पे अचीवर्स और जो फेल करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है। दोनों जो डेली डिसीजन लेता है ना, डेली का जो रूटीन है ना, वो जो ठीक करता है, उसका जो गोल है, जो भी गोल है उसका लाइफ गोल जो भी है, उसके लिए जो भी एक्टिविटी है वो डेली करता है। जो भी अचीवर्स है वो करता है उस गोल के अचीव करने के लिए, और जो फेलियर है वो शुरू में करता है। जो फेलियर है वो शुरू में करता है लेकिन कुछ दिनों बाद वो छोड़ देता है। 80% पीपल, 90% पीपल वो छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता है, शुरू में करता है लेकिन धीरे धीरे छोड़ देता है। क्यों? उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अचीवर्स, उसको क्या अच्छा लगता है? जो भी डेली रूटीन है वो करता है, उसको वो अच्छा लगता है? नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो करता है, इसलिए वो अचीवर्स है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक बार रात को 3 बजे उसका मतलब उठ गया था होटल से, वो कॉरिडोर में आ गया और उसमें देखा दूर से एक दो लाइट आ रहा, छोटा छोटा 2 लाइट
ऐसा इस हाइट पे आ रहा है, मतलब सचिन ऐसा है, इस हाइट पे 2 आ रहा है, उसको डर लग गया, क्या हो रहा है, सामने से क्या आ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं था, तो जो सामने आया तो देखा कॉटनी एम्बुलेंस है, तो बोला आप कहाँ जा रहे हैं, बोला प्रैक्टिस करने के लिए, बोला कहाँ पे, तो बीच पे, वेस्ट इंडीज पे खेला था, वो बीच पे बॉलिंग प्रैक्टिस करता था 3 बजे से, उसको अच्छा लगता था, और उसी समय युवराज सोया हुआ था, वो भी किया है, ऐसा नहीं कि वो भी सक्सेसफुल है, उस समय दूसरा कोई सोया हुआ था, दूसरा कोई क्रिकेटर घर में सोया हुआ था, इसलिए वो सचिन नहीं बना, उसके लिए एम्ब्रोस नहीं बना। तो जो कुछ भी करना पड़ता है इस बिजनेस में इस बिजनेस में जो भी करना पड़ता है, थोड़ा कम थोड़ा बेसी, जो करता है डेली एक्टिविटी वो सक्सेसफुल होता है, जो नहीं करता है डेली एक्टिविटी वो सक्सेस नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग एक्टिविटी डालते हैं, मान लेते हैं कोई जो करना पड़ता है इस बिजनेस में, जो भी करना पड़ता है उसका इवोल्यूशन, उसका हिसाब जोड़ते हैं 1 साल के बाद, कितना किया है और कितना मिला है वो भी हिसाब जोड़ते हैं। ये मत कीजिए, ये करने से नहीं होगा। किसी बिजनेस में ऐसा नहीं हुआ, किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं हुआ कि जो डेली आप करते हैं, हाँ हिसाब रखिए, हो सकता है आप बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेली जो एक्टिविटी है वो जो डेली रूटीन है वो आप ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन 1 साल के अंदर वो आप जो किए हैं, वो जो आप किए हैं उसका आप हिसाब करते हैं, और जो मिला है उससे आपका हो सकता है आपका जो मतलब इक्वेशन है वो सही नहीं लग रहा, लेकिन 1 साल में, 1 महीना में, 6 महीना में ये हिसाब मत जोड़िए, कम से कम 3 से 5 साल का बाद आप हिसाब जोड़िएगा आप कहाँ पे हैं, तो ही आपको ठीक ठाक पता चलेगा, ठीक ठाक आप इवोल्यूट कर पाइएगा जो भी आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी कर रहे हैं, सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, जहां पे भी आप कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में भी आप कर रहे हैं। तो इसलिए डेली रूटीन आपको ठीक करना होगा। विनर्स आर कमिटेड टू डू एवरीथिंग इट टेक्स टू विन। तो विनर्स के जैसे हम लोग को पहले मेंटालिटी बनाना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा। ठीक है, द चॉइस यू मेक डेली कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम will determine the type of life and lifestyle we will live. डेली जो चॉइस करते हैं आप, ये जब करने लगिएगा ना प्रैक्टिकली हमको पता नहीं, यहाँ पे 60-70 जितने भी हैं, आज से कीजिएगा, कल से कीजिएगा, 1 हफ्ता के बाद कीजिएगा, 1 महीना के बाद कीजिएगा, 1 साल के बाद कीजिएगा, लेकिन जब भी इसको करना स्टार्ट कीजिएगा आप चौंक जाइएगा, आप चौंक जाइएगा। इसको कीजिए, डेली डिसीजन आप लीजिए, डेली चॉइस जो आप कर रहे हैं ना, डेली का चॉइस आप जो किए हैं उसको शाम को इवैल्यूएट कीजिए, आप क्या किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो डेली रूटीन आप, मेरा भी ऐसा लगा था, ये डेली रूटीन आप प्लान कीजिएगा और उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो शुरू में कुछ दिनों का बाद आपका वो जो ग्राफ है वो नीचे थोड़ा आ सकता है, आ जाएगा, तो जरूर आएगा, मेरा भी आता है, तो उसको बरकरार रखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, मेंटली आपको कुछ भी लगे कि रिजल्ट तो नहीं आ रहा, कुछ भी तो नया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कीजिए। कभी प्लान तो फिक्स नहीं होता था, कभी किसी दिन प्लान तो फिक्स नहीं होता था, फिर भी मैं लिखता था एसटीपी 7 बजे से 8 बजे तक। मैं मेरे मतलब जाहिर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ। फिक्स नहीं था लेकिन हो गया फिक्स, उसी समय पे फिक्स हो गया, किसी से भेंट हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि शुरू में आपको अच्छा ना लगे, जो रूटीन आपको डेली कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी आप कीजिए, तो आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा। पीपल प्लान देयर ईयर्स मंथ्स बट अचीवर्स प्लान देयर डेज ऑलवेज।
नॉट ओनली डेज, ऑलवेज, एक दिन नहीं, हर समय अचीवर्स उसका दिन ऑलवेज प्लान करता है और उसी का मुताबिक चलता है, उसी का मुताबिक वो चलता है तो ही वो अचीव करता है। और ब्रूस ली के एक फेमस सेइंग है, द सक्सेसफुल वॉरियर्स इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस एवरी डे। कॉमन पीपल है, वॉरियर्स आर कॉमन पीपल बट लेजर लाइक फोकस फॉर एवरी डे। कहाँ गया? हेलो हेलो। तो इसलिए हम लोगों को आज से जो करना होगा ना, हर दिन पे फोकस करना है, हर दिन पे जो भी हम लोगों का लाइफ गोल है, जो भी गोल है उस पे हम लोगों को फोकस करना है। ठीक, देखिए हम लोग अगर अविदा ने पिछला महीना 10% बोला है, हम लोग हर दिन खुद का हैबिट, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी हैबिट है, जो भी वर्क है, जो भी एक्टिविटीज है, 1% अगर बेहतर करेंगे ना तो 3 महीना में 100% बेहतर हो जाएगा। इसलिए आज का जो फोकस है, आज का जो स्ट्रेस है, आज का जो मतलब ये है वो डेली में है। डेली जो करते हैं उस पे आपको जोर देना होगा। डेली क्या कर रहे हैं, महीना पे नहीं, साल पे नहीं, डेली आप क्या कर रहे हैं उस पे जोर दीजिए। तो डेली क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा मेरा मुताबिक आपको दे रहा है, आपका हिसाब से, आपका अपलाइन से और आपका खुद से आप वो डिजाइन कर सकते हैं। ट्राई टू, मतलब आप ट्राई कीजिए कि जितना अर्ली हो सके। आप ऐसा गोल मत फिक्स कीजिए आप 7 बजे उठते हैं 5 बजे उठेंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अब कर ही नहीं पाएंगे। अगर कर भी लीजिएगा तो 2 दिन 4 दिन 15 दिन इसके बाद फिर बंद हो जाएगा। आपको करना है तो ग्रेजुअली उसको कीजिए। आप 7 बजे उठते हैं तो उसको पहले 6:45, फिर 6:30, फिर मतलब एक दिन में नहीं, एक दिन किए 6:45, उसका अगला दिन 6:30, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन आप मतलब एक हफ्ता आप 6:45 बजे उठिए, फिर 6:30 बजे एक हफ्ता उठिए, फिर ऐसा करके 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 जितना अर्ली हो सके 4, अभी विंटर के दिन है 4-5 ट्राई कर सकते हैं। बोला क्या बात बोल रहा है यार, ठंडा का दिन है, तू बोल रहा 4 बजे 5 बजे उठने के लिए। भाई वो एम्ब्रोज को देखिए, सचिन को देखिए, टेस्ट में दोहरा शतक मारने का बाद जैसे ही आउट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में खेला था, जैसे ही आउट हुआ, फास्ट इनिंग्स में 200 किया था, वो नेट प्रैक्टिस में चला गया, फिर नेट प्रैक्टिस में उसी समय चला गया, रूम में गया और नेट प्रैक्टिस में। ऐसे ही भगवान नहीं बना। तो इसलिए इसके साथ बिजनेस का क्या संबंध है? पूरा संबंध है, 100% संबंध है। आप खुद को पहले डिसिप्लिन कीजिए, फिर बिजनेस में आप डिसिप्लिन हो जाएगा। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन देखिए उसका हेल्थ कितना अच्छा है, उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, कितना डिसिप्लिन है, सबसे ज्यादा जोर देता है हेल्थ पे। अब तक जो हो गया हेल्थ का ऊपर, जो भी अब तक हो गया उसके बाद से इसको बेहतर करना है, ठीक रखना है। जो भी स्थिति आपका हेल्थ का हो गया इससे खराब नहीं होने देंगे, इसलिए जितना हो सके आप अर्ली उठिए। उठने के बाद जो पहला काम है आप प्रेयर कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी करना है कुछ एक कीजिए, तो ऑलमोस्ट सेम है। आप प्रेयर कीजिएगा तो भी ग्रेटिट्यूड है, आप मेडिटेशन कीजिएगा तो भी ग्रेटिट्यूड है, आप सोए भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, आप बिस्तर से उठ के फिर नीचे जाके भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए मैंडेट आपको बैठ के ऐसा ही करना है, हाथ फैला के जैसे दीदी दिखाए, ऐसा नहीं है। आप सो के भी कर सकते हैं, उस समय सबसे अच्छा होता है। जब ट्राई कीजिए, शुरू में ये असुविधा होगा, लेकिन ट्राई कीजिए जब भी आप उठते हैं उसी समय उसको कीजिए। आपका जो भी अफर्मेशन है, आपका जो भी प्रेयर है, जो भी है, पूरा नहीं उठे हैं, आपका ब्रेन पूरी उठे नहीं है, उस समय ट्राई कीजिए। नहीं होगा आप फिर से सो जाइएगा, मैं बता रहा हूं आपको। उसी समय आप ट्राई कीजिएगा तो फिर से सो जाएगा, आपका बाद फिर 10 मिनट चला जाएगा, आप देखिएगा।
फिर उस समय फिर उस समय कीजिए। ऐसा करते 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 आपका समय एक ऐसा प्रैक्टिस आ जाएगा कि उसी समय में जो भी आपका अफर्मेशन है, जो भी आपका प्रेयर है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, आपका पर्सनल, आपका बिजनेस, आपका फैमिली, जो भी है, आप उसी मतलब टाइम स्पैन में आपको वो कंप्लीट कर दीजिएगा। जिस समय आप उठे भी नहीं हैं और सोए भी नहीं हुए, उसी समय में आप कीजिए। सो के भी कर सकते हैं, मैं तो सोया करता हूँ। 6 बजे अलार्म दे दीजिए, 5:30 बजे अलार्म दे दीजिए। अलार्म देने के बाद उसी समय उठिए और उस एफर्मेशन को दोहराइए, बोलिए। उसमें आपको शुरू में 20-30 मिनट चल जाएगा। शुरू में बता रहा हूँ, शुरू में उसको कंप्लीट करने में 20-30 मिनट चला जाएगा, क्योंकि फिर से आप सो जाइएगा। और उसके बाद उठ के 6:30 बजे से आप, मैं आपको नहीं बोलूंगा, मतलब मन लगा के सुनिए कि दीदी सच बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना, सही जा रहे हैं ना, हाँ। तो उसके बाद बैठिए। बैठने के बाद मत सुनिए, आंख बंद करके बैठिए, मोबाइल के सामने या लैपटॉप का सामने, डेस्कटॉप का सामने बैठ के उसको शुरू में ऐसा सुनिए। फिर प्रैक्टिस कीजिए सुनने का। सुनिए। फिर एक्सरसाइज शुरू में मत कीजिए, आप देखिए। शुरू में एक्सरसाइज मत कीजिए, देखिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना देखिए, फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए। करने के बाद पिछला दिन जो आप प्लान किए थे, अगर अगला दिन, मतलब जब सोने जाते हैं, उससे पहले आप नेक्स्ट डे, मतलब आज कितना संडे है, आज रात को मैं अगर मंडे का प्लानिंग कर लेता हूँ, रात को सोने जाने से पहले, जो कल क्या करना है, तो अगला दिन अगर हो जाता है आपका प्लानिंग, तो उसको देख लीजिए। सुबह आप देख लीजिए। उसके बाद जो भी आपका रूटीन है वो आप कीजिए। और मतलब उस रूटीन में लिंक सुनना 1 घंटा अब रखिए। और मैं जो अभी करता हूं, जब वो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का लिंक सुनता हूं, उसी समय मैं किताब पढ़ लेता हूं कि उसके वो इतना बार सुना हूं, तो ऐसे मैं सुनता हूं, इधर पढ़ भी लेता हूं। तो आपका ये अच्छा लगेगा, आइडिया मेरा अच्छा लग रहा है, तो उस समय आप कर सकते हैं कि आप उधर सुन भी रहे हैं, इधर पढ़ भी रहे हैं। उसी समय किताब और लिंक, मतलब हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का वो जो नॉलेज है वो आप सुन लीजिए। सुनने के बाद आप लिंक, किसी का ग्रुप में चलता है लिंक सुनने का, वो सुबह कभी चलता है, तो उस समय सुनिए। और किसी का नहीं होता तो लिंक सुनिए। किसी को भी लग रहा है क्या, ये तो 730 बार बोल रहा तू, लिंक सुनना। हाँ, मुंह देख के लग रहा हमको किसी का, हाँ लग रहा हमको, एक ही बात दोहराया जा रहा है, 730 बार बता रहे। तो भैया सुनिए, सुबह ही सुनिए, ठीक है। सुनने के बाद आपका जो भी रूटीन है, आपका जो भी प्रोफेशन है, घर में प्रोफेशन है, बाहर प्रोफेशन है, अब उसको कीजिए। इसके बाद शाम को, मतलब जब किसी का 5 बजे छुट्टी होता है, किसी का 6 बजे छुट्टी होता है, किसी का 7 बजे छुट्टी होता है, वो जैसे सुमन का वो ठीक नहीं, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे हो जाता, तो उसको पता चल जाएगा कि आज गाड़ी आया है 8 बजे तक चलेगा। तो उसके बाद अभी प्लान कर लीजिए कि मैं 8 बजे फ्री होऊंगा, 8 बजे से 10:30 बजे तक मेरा क्या काम होगा। उस काम पे देखिए, आप सीडी सुन रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप HTC अटेंड कर रहे हैं, इसमें आपका बिजनेस ग्रोथ डायरेक्टली संबंध नहीं है। बिजनेस ग्रोथ आप 2 ही एक्टिविटी है। मैं जो बिजनेस वर्क लिखता हूं, यही 2 एक्टिविटी में करता हूं तो लिखता हूं, अगर नहीं कर पाता हूं तो नहीं लिखता हूं। या तो प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, HTC से किसी का बात करना, डेमो दिखाना, क्वीन दिखाना, ब्यूटी दिखाना, किसी को आप दिखा रहे हैं, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। या तो आप किसी को बिजनेस प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ये 2 ही एक्टिविटी है। मतलब ये प्रोडक्ट में जो भी है, ब्यूटी, हेल्थ, जो भी है, HTC जो भी है, आप अगर दिखा रहे हैं आपका या आपका टीम का दिखा रहे हैं, तो भी आप बिजनेस एक्टिविटी है, आपका ये बिजनेस है, क्योंकि आपका ही बिजनेस बढ़ रहा है। आप खुद का दिखा रहे हैं या आपका टीम का दिखा रहे हैं, आपका ये बिजनेस एक्टिविटी है। इसको इंक्लूड कीजिए, जबरदस्ती इंक्लूड कीजिए इसको। शुरू में नहीं हो पाएगा, अभी भी कभी किसी दिन मेरा नहीं हो पाता है, ट्राई करता हूं फिर भी नहीं हो पाता, ऑनेस्ट कॉन्फेस करता हूं। लेकिन जब से लिखना स्टार्ट किया तब से बढ़ा है मेरा, ये मैं बता सकता हूं। तो इसको, ये दोनों एक्टिविटी, आपका नहीं हो रहा तो टीम से नहीं हो रहा तो खुद का, ये 2 एक्टिविटी हो, उसके बाद
मतलब सुबह किसी का हो पा रहा था अच्छा है, किसी का नहीं हो रहा तो शाम से ये फिक्स कीजिए। फिक्स करने के बाद वो एक्टिविटी आप कीजिए। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है आप इतना काम पे बिजी हो गया, ये होगा, मैं प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। सुबह कल किया प्लानिंग, फिर सुबह भी देखा है, फिर दोपहर को आप भूल गए क्या है शाम को या इसके बाद, तो फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल पे है वो, क्योंकि ओ अच्छा कैसे मोबाइल पे आएगा, मोबाइल पे आप भेजिए किसी को जिसको आप भेजना चाहते हैं, जिसको भेजना चाहिए तो भेजिए। तो भेजने के बाद वो मोबाइल पे रहेगा तो उसको देखिए, उसी का हिसाब से आप चलिए। आपका हो सकता है बहुत सारा काम आ गया वो कीजिए, लेकिन जो आप फिक्स कीजिए उसको पहले कीजिए। उस पे किसी ऐसा ये आ रहा है किसी इमरजेंसी काम आ गया तो कीजिए, लेकिन इसको पहले कीजिए। तो आप इसको करने से क्या, आप इस लय में रहिएगा ना, तो आपका ब्रेन कूल रहेगा। आपका ब्रेन जो रहेगा ना कूल रहेगा। आपको शाम तक जब सोने जाइएगा ना तो आपको अच्छा मतलब खुशनुमा लगेगा, अच्छा लगेगा कि आप उसको मतलब पूरा किए हैं। उससे भी ज्यादा मतलब मेरा मैं जो फिक्स था उसके अलावा और एक काम आ गया, मतलब मधुमिता ने एक HTC फिक्स किया तो उसको भी मैंने किया है, तो है ठीक है, वो एक्स्ट्रा किया है अच्छा है। लेकिन इसको अगर नहीं करेंगे तो आपका मन में जो इस प्लानिंग जो कर रहे हैं ना, इसका ऊपर इंपॉर्टेंस चला जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ, इसलिए स्टेज दे रहा हूँ उसको। तो उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप बोलिए काम तो हो रहा मेरा, मैं मधुमिता का एक HTC किया, सुमन का HTC किया, तो एक्टिविटी तो मेरा हुआ है, लेकिन आपका जो विश्वास है ना प्लानिंग करने का डेली का, उसका ऊपर विश्वास उठ जाएगा कि इसका क्या जरूरत है, मेरा तो एक्टिविटी हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, लेकिन अगला 2 दिन में नहीं होगा। आप अगर उसको फुलफिल नहीं कीजिएगा, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, इसलिए उसको पहले कीजिए, फिर आप जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको कीजिए। उसको करने के बाद रात को आप उसको देखिए, आप इसमें क्या वेरिएशन छोड़, ये सोमुदा उठाए तो नहीं गलत नहीं है। सोमुदार गल्प बोले दी, सोमुदा गरम ভাবলে হবে না, সমুদ্র এখন তো অনেক জায়গা, সমুদ্র অটোতে চেপে, মানে অটো না কি বলে ওটা, অটোটা ছিল সমুদ্র না, কিটা তো ভালো, এর আগে যেটা ছিল স্কুটার চেতক। আমি একদিন ইয়ে দিয়ে যাচ্ছি, জলটাকে দিয়ে যাচ্ছি, আর সমুদ্র ওই দিক দিয়ে আসছে, আরে সমুদ্র কি, পরে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ ও তো এক ঝটকা নিয়ে নেয় গাড়ি চালাতে, মানে অটো চালাতে, হ্যাঁ তো এখানে তো অনেক এসি ফেসি চলছে, তো অনেক ভালো জায়গা। আরে মানে অটো নাই, মানে আমি ওটাকে অটো বলতাম, তো ওই স্কুটার চালাতে চালাতে যদি নিয়ে নেয় 30 সেকেন্ড, তো এখানে তো কত সুন্দর জায়গা, সেখানে নিতেই পারে, একদম ইয়ে অধিকার আছে এটা নেওয়া। তো যাই হোক, কোথায় ছিলাম? ও রাত্রে যেটা আমি করলাম, যেটা মানে ফুলফিল করলাম, সারাদিনে করলাম, কিছু ভ্যারিয়েশন আসতে পারে, যেটা ফিক্স করেছিলাম সেটা হয়নি, অন্য হয়ে গেছে, বা যার বাড়িতে যাবো বলেছিলাম সে অ্যালাউ করেনি, অন্য কিছু করেছি সে সময়, সেগুলোকে ইয়ে করে নিলাম, দিয়ে নিজের ইভ্যালুয়েট করলাম কি করলাম সারাদিনে। করার পরে রাতে আবার কি করব, যা যা করলাম সারাদিনে করলাম, রাতে আবার কি করব, ইভ্যালুয়েট করব। ইভ্যালুয়েট করার পরে সবকিছু হয়ে গেল, রাতেও ঠিক ওরকম একটা পিরিয়ড আছে, রাতেও ঠিক আরেকটা ওরকম পিরিয়ড আছে যখন আমি ঘুমাইনি আর জেগেও নেই, যখন আমি জেগেও নেই আর ঘুমিয়েও যাইনি, তখন আবার ওইগুলো রিপিট করব। যদি এটা করি কিছু তো ভালো হবে, সেই জন্য কাউকে জোর দিয়ে বলছি না যে দারুণ রেজাল্ট আসবে করো, করলে করো, না করলে না করো, ব্যাপারটা এরকম, ঠিক আছে? তবে করলে রেজাল্ট পাবে, এটা ঘটনা। তো नोइंग विल नॉट मेक यू रिच, बहुत कुछ जाने हैं, आज सीखे हैं ना, और भी सीखेंगे। तो यहाँ पे एक लिखा, मेरा बात नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, नोइंग विल नॉट मेक यू रिच, डूइंग विल।
सुनाई पड़ा? नहीं। Knowing will not make you rich. Doing will. समझ में आया? Yes. नॉलेज, Is not power. नॉलेज में आपका कुछ नहीं होगा, उस नॉलेज को करने से कुछ होगा. ओके, थैंक यू. बैक टू मोहन.